Hello dear kids, a very warm good morning to all of you. I welcome you all to the EVS class. I am Ranjana ma'am. I hope you all remember my name now and I hope you all are doing good. You all are hale, hearty and safe in your homes. Stay safe children and stay happy so that when the school reopens, we can all come to school and meet each other. अच्छे से रहो आप सब लोग. जैसे ही स्कूल खुलेगा, जब भी खुलेगा, हम सब मिलेंगे and then we will have classes in the school only. फिर जैसे स्कूल हमारा चलता है वैसे ही हमारी क्लासेस भी होंगी. Okay? But for the time being, we will have these online classes only, online classes and videos. Videos are like your classroom only. Okay? The only difference is that you are not present in the class physically. आप बच्चे क्लास में नहीं बैठे होते हो और टीचर क्लास में नहीं पढ़ा करके आपको ऑनलाइन पढ़ा रही है. ठीक है? अदरवाइज जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह ही है. They are like your classroom teaching only. That is why I keep telling you to watch the videos. इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सब बच्चे वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वीडियोस में हम जैसे क्लास में एक्सप्लेन करते हैं इन द सेम वे वी एक्सप्लेन इन द वीडियोस. जैसे हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम वीडियोस में भी एक्सप्लेन करते हैं. ओके? इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप जरूर देखो वीडियोस. ठीक है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास. वी आर डूइंग लेसन नंबर 5, माय पेट्स एंड देयर होम्स. लेसन 5, माय पेट्स एंड देयर होम्स. In the previous videos, I have explained you about homes of different animals, pet animals as well as wild animals. Okay? Pet animals are the animals which we keep at home. जो हम अपने घर में जिन animals को रखते हैं, like dog, cat, fish, parrot, cow, buffalo, all these animals are pet animals. Okay? These are domestic animals, मतलब जिनको कि हम घर में रख करके उनको अपने घर के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं. These animals can be domesticated. ठीक है? Some domestic animals cannot be kept as pets. कुछ जो domestic animals हैं उनको हम as pets नहीं रखते हैं. They live in farms. जैसे शीप है. ओके? गोट्स भी लोग रखते हैं घर में. हॉर्स. दीज एनिमल्स लिव ऑन फार्म्स. ठीक है? एंड वाइल्ड एनिमल्स ऑफ कोर्स दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वो जंगल में रहते हैं. ईदर दे लिव इन द नेचुरल होम्स और सम ऑफ द एनिमल्स मेक होम फॉर देमसेल्व्स, लाइक एंट, रैबिट. जिससे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पेट्स जिनको हम घर पे रखते हैं उनके लिए वी मेक होम फॉर देम. उनके लिए हम घर बनाते हैं. द एनिमल्स विच लिव इन देयर नेचुरल होम्स लाइक लायन, मंकी, birds of course make their nest. Okay? So like monkeys live on trees. Fish live in water bodies like sea, pond, river, lake. When we keep fish as pet, जब हम fish को as pet घर में रखते हैं, then we keep them in an aquarium. Aquarium is the home for fish. This is when we keep fish as pets at home. Okay? Otherwise, fish live in water bodies. जैसे sea है, pond है, river, lakes, जहाँ भी पानी होता है वहां पे sea fish रहती है. Tortoise, it can live on land as well as in water. Okay? Then
रैबिट्स ऑफ कोर्स मेक बरो फॉर देम, जैसे मैंने बताया था, दे डिग द सॉइल और उसके नीचे होल बनाते हैं, उसको कहते हैं बरो. देन monkeys live on trees. Lion live in den. Bees make their hive. Spiders weave their web. Birds make their nest. And you must have seen there are different types of nests also. Bird होती है which is known as tailor bird. It makes its nest so beautifully. वो इतना सुंदर अपना नेस्ट बनाती है कि देख के लगता है कि somebody has stitched it. किसी ने उसको सिलाई करके बनाया है. That is why that bird is known as tailor bird. हिंदी में उसको कहते हैं बया. हिंदी में वो वर्ड है बया. In English it is called tailor bird. Okay, so animals also need a place to live where they can relax, where they can sleep comfortably at night, where they can protect themselves. Most of the birds live on trees only. Trees पे अपना nest बनाते हैं, वहीं पर रहते हैं. ठीक है. So this was homes of pet. Now how to take care of our pets. ठीक है. How to take care of our pets. मतलब हम अपने पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. Of course, if we are keeping pet at home, we have to take care of them. उनकी हमें केयर करना, उनको लुक आफ्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी है. ठीक है. तो उनकी केयर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. वी मस्ट प्रोवाइड देम गुड फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक. उन्हें हमें खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी देना चाहिए. अच्छा खाना से मतलब है वॉट एवर देयर रिक्वायरमेंट इज. जिस भी एनिमल की, जिस भी बर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसे हमें देना चाहिए. वो ज्यादा खाते हो चाहे कम खाते हो, वी शुड गिव देम फूड एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जैसे कुछ डॉग्स होते हैं उनको दिन में मटन देना जरूरी होता है. जो थोड़े बड़े ब्रीड वाले डॉग्स होते हैं उनको दिन में मटन जरूरी होता है, अदरवाइज उनकी बोन्स नहीं पूरी डेवलप होती हैं. ओके. देन उनको और भी जो फूड मिलता है, मिल्क है. देन बर्ड्स अगर हम रखते हैं तो उनको जो भी, जैसे पैरट है, पैरट ग्रीन चिली खाता है, ग्राम चने खाता है. तो जो भी एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है, वो हमें देना जरूरी है. ओके. देन वी शुड गिव देम क्लीन वाटर टू ड्रिंक. पानी पीने के लिए एक उनका अलग सेपरेट बर्तन होना चाहिए जिसमें हम उन्हें क्लीन वाटर पीने के लिए हमें देना चाहिए. देन वी मस्ट क्लीन देम रेगुलरली. वी मस्ट क्लीन देयर होम्स रेगुलरली. जो एनिमल्स की रेगुलर क्लीनिंग मतलब उनको नहलाना, जैसे उनको सोप, उनके एनिमल्स के अलग से सारी चीजें आती हैं, उनको सोप वगैरह लगा के उनको क्लीन करना, सो दैट जैसे वो बाहर घूमते हैं तो उनके नेल्स वगैरह में कई बार मिट्टी है, कुछ है, तो उसको क्लीनिंग करना जरूरी है. अदरवाइज दे विल ऑल्सो गेट इन्फेक्शन. ठीक है. उनको क्लीन करना, उनके घरों को क्लीन करना बहुत जरूरी है. देन वी शुड टेक आवर पेट्स टू ए वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल. जैसे मैंने बताया था कि एनिमल्स के भी अलग से डॉक्टर्स होते हैं एंड दे आर नोन एज वेटरनरी डॉक्टर, जिनको हम शॉर्ट में वेट भी कहते हैं. ठीक है. वेट, VET, vet. This is the short form for veterinary doctor. VETERINARY. Veterinary doctor बोलने की जगह many a times we say vet. ठीक है. vet मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. ओके. So whenever they fall ill, we should take them to a vet. और टाइम टाइम पे उनका जो वैक्सीनेशन है, जो भी उनको मेडिसिन वगैरह देनी होती है, वो सब करते रहना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी शुड लव देम. उनको प्यार करना बहुत जरूरी है. ठीक है. अगर हमने पेट रखा है घर पे तो दे आर लाइक आवर फैमिली मेंबर्स. जैसे हम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने पेट से भी वैसे ही प्यार करें. ठीक है.
because pets also understand. They cannot speak, but they can express themselves through various different ways and they understand the affection. उनको जब हम प्यार करते हैं तो वो उसको समझते हैं. And when we keep a pet over a period of time, जैसे जब हम पेट रखते हैं घर पे, तो कुछ टाइम बीते 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 उनके साथ हमारा अपने आप बहुत अफेक्शन हो जाता है. उनके साथ हमारा बहुत अफेक्शन हो जाता है. वी स्टार्ट लविंग देम सो मच. वो हमें बहुत प्यार करने लग जाते हैं. ठीक है, बिकॉज एनिमल्स हैव फीलिंग. वो बोल नहीं पाते हैं बट उनके पास भी फीलिंग होती है और वो उसको एक्सप्रेस करने का उनका बहुत सारा तरीका होता है. ठीक है ना, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल कीप डॉग्स एज पेट्स. अधिकतर लोग डॉग रखते हैं. तो जब आप घर जाते हो, डॉग देखते हो ना, डॉग आकर के कितनी जोर से आके आपको हक करता है, प्यार करता है, अपनी टेल पीछे से ऐसे ऐसे कितना वैग करता है, टेल अपनी पूंछ हिलाता है, आपको लिक करता है, आपके ऊपर जंप करता है. ये सारे उनके अपना अफेक्शन दिखाने का, अपना प्यार दिखाने का उनका ये सारा तरीका होता है. ठीक है. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर इज 30. पेज नंबर 30. See the pictures. How can we take care of our pets? Feeding pets. मतलब जैसे रैबिट है, रैबिट को कैरेट बहुत पसंद आता है. रैबिट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरेट. तो उसको यू कैन सी ही इज फीडिंग हिम. ही इज फीडिंग द रैबिट कैरेट. जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी खाते हैं. ये देखो, फिरोज हैज केप्ट एक्वेरियम. फिरोज, दिस गर्ल इज फिरोज. लेसन की बिल्कुल हमने बिगिनिंग में पढ़ा था ना. This boy says, I have a pet dog named Bosky and his friend Alisha has kept parrot. Shubho has a pet cat and Firoz has kept aquarium. Okay, so you can see Firoz is feeding the fish. जो fish है, जैसे मैंने बताया था, aquarium में ऊपर से जगह होती है जहां से उनको fish को खिलाने के लिए जो भी उनका फूड होता है वो ऊपर से डालते हैं. Okay, so Firoz is feeding the fish. Then if they fall ill, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो you should take them to the doctor. vet के पास ले जाना चाहिए. Here you can see the vet is giving an injection. इंजेक्शन दे रहे हैं. Then cleaning. Cleaning the homes of the animals is also very important. Cleaning the animals as well as their homes. मतलब एनिमल्स को क्लीन करना और उनके घर को साफ करना दोनों बहुत जरूरी है. सो ही इज क्लीनिंग द होम ऑफ मे बी शेड ऑफ अ काउ. ठीक है, तो उसको साफ कर रहे हैं. देन गिविंग बाथ. इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द एनिमल्स ऑल्सो क्लीन. उनको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है. सो यू कैन सी शी इज गिविंग अ बाथ टू द डॉग. डॉग्स को लोग जो डॉग रखते हैं तो संडे मोस्टली या किसी भी दिन हॉलीडे के दिन उनको खूब अच्छे से बाथ देते हैं. उनका शैम्पू आता है, शैम्पू करते हैं, उनको सोप लगाते हैं, उनके नेल्स वगैरह कट करते हैं. उनके अगर जो फर होते हैं, मतलब उनके जो बॉडी के बाल होते हैं, वो अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको कट करते हैं. ठीक है ना. सो वी प्ले विथ आवर पेट्स एंड दे ऑल्सो लव टू बी विथ अस. पेट्स हमारे घर में रहते हैं तो हम उनके साथ खेलते हैं एंड वो भी, उनको भी हमारे साथ रहना बहुत पसंद आता है. वो भी हमारे साथ रहना पसंद करते हैं. दे ऑल्सो लव टू बी विथ अस. ठीक है. नाउ देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो विच कैन बी ट्रेन्ड एंड केप्ट एज पेट एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, मंकीज, चीताज, स्नेक्स एटसेट्रा. मतलब कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं एंड उनको भी हम ट्रेन करके एज पेट्स रख सकते हैं. बट ये जो वाइल्ड एनिमल्स है लाइक एलिफेंट, मंकीज, चीताज, स्नेक्स, पीपल डू नॉट कीप दीज एनिमल्स एट होम. नॉर्मली ये जो एनिमल्स हैं इनको ट्रेन कर सकते हैं बट लोग इनको अपने घर पे नहीं रखते हैं. नॉर्मली पीपल कीप दीज पेट्स फॉर कमर्शियल पर्पस. जैसे सर्कस के लिए लोग रखते हैं. मंकी देखा है जो मदारी का खेल दिखाता है, वो मंकी अपने साथ, वो मदारी जो है वो अपने साथ 2 मंकीज लेके चलता है. फिर वो जहां पे भी उनका खेल दिखाना होता है, ही ड्रेसेस देम एज
बॉय एंड गर्ल, एक वो बॉय के कपड़े पहनाता है, एक को गर्ल के कपड़े पहनाता है, उनका थोड़ा मेकअप करता है, फिर जो भी उनको करने को बोलता है वो उसका एक्शन करते हैं। तो वो क्या करता है, उन मंकीज को पहले ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो वो मंकीज को ट्रेन करके क्या करता है, उनका खेल दिखाता है एंड उससे वो पैसे कमाता है। दैट इज देयर हिज अर्निंग। सो ये जो भी एनिमल्स है इनको लोग ट्रेन करते हैं एंड ट्रेन करके इनके थ्रू इनका खेल दिखा करके पैसे कमाते हैं। घर पे आप जस्ट इमेजिन, घर पे कोई चीता रखेगा, अगर चीते ने किसी को काट लिया तो, किसी पे अटैक कर दिया तो, एलिफेंट कितना बड़ा होता है, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, हो सकता है वो हमारे घर के अंदर आ भी नहीं पाए, तो हर कोई घर पे तो एलिफेंट रख नहीं सकता है। सो ये एलिफेंट है, चीता है, स्नेक है, मंकीज हैं। लोग इन एनिमल्स को ट्रेन करते हैं और फिर उनको उनका खेल दिखा करके पैसे कमाते हैं। जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, जो सर्कस होता है वहां पे एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं, एलिफेंट्स बहुत तरह की ट्रिक्स दिखाते हैं, बहुत तरह का गेम करते हैं। चीता भी है, देखो यहाँ पे चीता जो है लोग ट्रेन करते हैं, चीते को है, लायन है, टाइगर है, सबको लोग मास्टर, जो उनके मास्टर्स होते हैं वो ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग उनकी होती भी है। बट वो नॉर्मली सर्कस वगैरह में रहता है, सर्कस में आपको मिलेगा। घर पे कोई चीता या लायन या एलिफेंट या मंकी या स्नेक कोई भी इन एनिमल्स को एज पेट नहीं रखता है, ठीक है ना। दे आर सो डेंजरस, अगर हमें कभी काट लिया तो इन एनिमल्स को लोग जो ट्रेन करते हैं, सांप भी देखा होगा, वो जो एक बीन बजाता है और उसके साथ साथ सांप ऐसे 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 करके डांस करता है, देखा है ना। सांप ऐसे ऐसे डांस नहीं करता है, स्नेक मूव्स, जैसे जो बीन बजाता है आप देख रहे हो, बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ऐसे करके होता है, ऐसे होता है एंड बीच में इट इज लाइक बलून, बीच में ऐसे करके बलून और फिर नीचे फिर ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे फ्लूट में, बांसुरी में जैसे फूंक मारते हैं, यहाँ पे ऐसे इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। एंड ऊपर से जब वो फूंक मारते हैं तो उन होल्स में से हवा निकलती है एंड वो साउंड होती है उसमें से। तो जब जो स्नेक चार्मर जो होता है वो जब बीन बजाता है तो स्नेक जो है ऐसे ऐसे मूव करता है। देखा होगा कभी कि वो स्नेक को बड़े से एक लकड़ी के बॉक्स में लेकर के घूमता रहता है। तो वो कहते हैं ना सांप का खेल दिखाता है। एक्चुअल में क्या होता है, सांप डांस नहीं करता है। सांप जो होता है, स्नेक जो होता है, जब मदारी, ये जो स्नेक चार्मर जो होता है, वो जब बीन बजाता है उसको कहते हैं सपेरा। तो जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, बीन बजाता है, तो देखा होगा वो डांस कर करके ऐसे ऐसे करके बीन बजाता है। तो स्नेक जो होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए सांप भी साथ साथ ऐसे ऐसे मूव करता है। तो पीपल थिंक कि सांप जो है वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो ये एनिमल्स को भी लोग ट्रेन करके इनको एज पेट्स रखते हैं, बट घर पे इनको कोई पेट्स नहीं रखता है। शायद ही किसी के घर पे आपको ये एनिमल्स मिलेंगे एज पेट्स। इसको लोग सर्कस में रखते हैं या लेकर के इनसे खेल दिखाते हैं एंड पैसे कमाते हैं, ठीक है। सो दिस लेसन इज ऑलमोस्ट ओवर। नाउ डिड यू नो, on this picture you can see, on this page number 31 you can see pictures of a dinosaur and tiger, ठीक है। some animals like dinosaur, dodo birds used to live many years ago, but now we don't find them, they all died. Even now some animals are in danger. If we don't take care of them, they also will die very soon. For example, the tiger. ठीक है। कुछ एनिमल्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डायनासोर एंड एक बर्ड होती थी पहले, उसका नाम था डोडो, DODO, डोडो बर्ड, ओके, DODO, डोडो बर्ड। बहुत 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 थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले डायनासोर एंड डोडो बर्ड। ये डायनासोर बहुत बड़ा एनिमल होता था, ह्यूज, बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हो ना ह्यूज, बहुत बड़ा, एलिफेंट से भी बड़ा। एलिफेंट ऐसे इतना बड़ा होता है, जो डायनासोर्स थे वो एलिफेंट से भी बड़े होते थे, ठीक है। तो बहुत साल पहले डायनासोर्स होते थे एंड डोडो बर्ड्स, लेकिन अब वो
दोनों मर चुके हैं, अब वो नहीं मिलते। बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, बहुत पहले होते थे। दे यूज टू लिव मेनी ईयर्स अगो, मेनी मतलब बहुत हजारों साल पहले, लेकिन अब नहीं मिलते हैं बिकॉज दे बोथ डाइड। ठीक है, दोनों के अब वो मर चुके हैं। अब वो एनिमल्स, डायनासोर या डोडो बर्ड, अब हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, इवन नाउ सम एनिमल्स आर इन डेंजर। अभी भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेंजर में हैं, मतलब अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, अगर हम उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो दे विल ऑल्सो डाई, वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। लेकिन एनिमल्स क्या होता है, जब एनिमल्स भी अपने, उनके भी बच्चे होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो उससे उनका नंबर और बढ़ता जाता है। बट इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, फिर वो आगे उनका नंबर बढ़ेगा ही नहीं, वो पहले ही मरते जाएंगे। तो जैसे अभी टाइगर है, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, सबको पता है कि शेर जो है टाइगर। वन इज लायन, जिसको बब्बर शेर बोलते हैं। जो लायन होता है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, मेन होते हैं, दैट इज लायन। एंड शेर, शेर दैट इज टाइगर। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज टाइगर। तो जो टाइगर होता है, एज यू ऑल नो, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो टाइगर भी जो है, अगर उसको भी हम, अगर उसकी केयर नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर देम, दे विल ऑल्सो डाई वेरी सून, क्योंकि टाइगर्स का भी नंबर धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। लोग मारते भी हैं उनको फॉर देयर स्किन। टाइगर को बहुत बार जो शिकारी होते हैं, जो हंटिंग करते हैं, वो टाइगर्स को मारते भी हैं उनके स्किन के लिए। एनिमल्स की स्किन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, पहनने वाले कपड़े बनते हैं, बैग्स हैं, फुटवेयर है। तो इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ टाइगर्स, दे विल ऑल्सो डाई वेरी सून। ओके, नाउ व्हाट आर द की वर्ड्स इन द लेसन? द की वर्ड्स आर kennel. Kennel is the home of a dog. Kennel is the place where dogs are kept. जहां पे dogs रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? Kennel. Then stable. Stable is the wooden house where horses are kept. Stable जो होते हैं वो लकड़ी के बने रहते हैं, जहां पे horses को रखते हैं. Then aquarium. Aquarium is a house made of glass and water for fishes to live in. एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम ग्लास और वाटर का बना होता है, जहां पे फिशेज रहती हैं. ठीक है. देन शेड. शेड इज द हाउस वेयर काउज आर केप्ट, जहां पे काउज को रखते हैं. बफेलोज ऑल्सो लिव इन शेड. जो बफेलोज होती हैं उनको भी शेड में रखते हैं. देन बरो. बरो इज द हाउस फॉर रैबिट्स. जहां रैबिट्स रहते हैं, दैट हाउस इज नोन एज बरो. रैबिट्स मेक बरो फॉर देमसेल्फ. रैबिट्स जो है वो अपने आप अपना बरो बनाते हैं. देन कूप. कूप इज द हाउस वेयर हेन्स आर केप्ट. जहां पे हेन्स को रखते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट हाउस इज नोन एज कूप. देन हाइव. हाइव, बीज मेक अ हाइव टू लिव इन. बीज अपना हाइव बनाती है, मतलब अपना छत्ता बनाती है. जैसे बोलते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, आपने देखा होगा बिल्डिंग से बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं. वो एक के बाद ऐसे 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 करके बिल्डिंग्स में कई बार ऐसे करके इस शेप में उनका छत्ता रहता है. ठीक है ना. सो हाइव जो होता है वो मधुमक्खी का छत्ता है. बीज मेक अ हाइव टू लिव इन. ठीक है, उसी में सारे बीज एक साथ रहते हैं. एंड व्हेन अ हाइव इज बर्न, जब हाइव को जलाते हैं तो उसमें से हनी मिलता है, शहद मिलता है उसमें से. नाउ दीज वर द कीवर्ड्स: केनल, स्टेबल, एक्वेरियम, शेड, बरो, कूप एंड हाइव. कीवर्ड्स मीन्स द मेन वर्ड्स ऑफ द लेसन. कीवर्ड्स का मतलब है जो उस लेसन के मेन और समथिंग डिफरेंट, जो आपको जिन वर्ड्स के बारे में उतना पता नहीं रहता है. ठीक है. सो होम्स ऑफ एनिमल्स ऑब्वियसली इज न्यू फॉर यू. सबको तो पहले से घर नहीं पता था कि किस एनिमल के घर को क्या बोलते हैं. लेसन पढ़ने के बाद पता चला. सो दीज आर द कीवर्ड्स. ओके. देन व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर. मतलब इस लेसन में, जैसे लेसन के स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था
कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था ना कि ऑल पेट्स नीड अ प्लेस टू लिव, उनको प्लेस क्यों चाहिए होती है, नेम्स ऑफ एनिमल्स होम, एंड देन हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट्स और अदर एनिमल्स। नाउ व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर, मतलब पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपने इस लेसन में क्या पढ़ा और आपको क्या याद रखना है। ऑल एनिमल्स नीड अ होम टू लिव, मतलब सारे एनिमल्स को रहने के लिए घर की जरूरत है, जैसे ह्यूमन बींग्स को घर की जरूरत होती है, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम टू लिव। देन दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, अदर एनिमल्स एंड समटाइम्स ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स को भी अपने आप को हीट से, कोल्ड से, रेन, हीट मतलब गर्मी, ठंड, बारिश, अदर वाइल्ड एनिमल्स जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो मार के खाते हैं, एंड समटाइम्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि जो हम लोग होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एनिमल्स का शिकार करते हैं, मारते हैं। तो एनिमल्स को अपने आप को इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करना होता है। दैट इज वाई दे ऑल्सो नीड होम टू लिव। एंड देन वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स, मतलब हमें अपने पेट एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। केयर हम कैसे कर सकते हैं उनकी, वी शुड फीड देम प्रॉपरली, वी शुड फीड देम whatever food they require, we should give them clean water to drink, then we should keep them clean, that means उनको हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, उनका हाउस हमें क्लीन करते रहना चाहिए। इन केस दे फॉल इल, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वी शुड टेक देम टू द वेट, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो हमें उनको वेट के पास ले जाना चाहिए, दैट मीन्स जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाना चाहिए। और वी शुड लव देम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उनको प्यार करना चाहिए एंड उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो दिस लेसन इज ओवर नाउ। ओके, सो इन दिस लेसन व्हाट ऑल हैव वी डन, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इस लेसन में पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स फॉर एनिमल्स, सम आर मेड बाय अस, अस मतलब ह्यूमन बींग्स, कुछ घर जो है वो हम उनके लिए बनाते हैं, एंड सम हाउसेज आर नेचुरल, कुछ उनके अपने नेचुरल जो घर होते हैं मतलब जिसको उन्हें बनाना नहीं पड़ता है, एंड सम हाउसेज आर मेड बाय एनिमल्स देमसेल्व्स, जो पेट एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घर पे रखते हैं, वी मेक होम फॉर देम, हम उनके लिए घर बनाते हैं जिनको कि हम एज पेट एनिमल्स घर पे रखते हैं। देन सम एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल होम, जो मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का वो जंगल में घूमते हैं, एंड एलिफेंट्स ऑल्सो मूव इन ग्रुप, एलिफेंट्स का पूरा ग्रुप व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे मूव इन ग्रुप्स, वो अपने पूरे ग्रुप में घूमते हैं जो एनिमल्स जो एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें उनके मेल एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट्स सारे एक साथ होते हैं। तो वो एलिफेंट्स भी, उनका भी अपना कोई घर नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक होम, वो अपना जंगल में एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ मेनली फूड, एक जगह खाना खाया, जहां पे खाना खत्म हो जाता है देन दे मूव टू सम अदर प्लेस। जैसे एलिफेंट्स को बनाना बहुत पसंद होता है, ठीक है, तो एलिफेंट्स लिव इन जंगल्स, लायन है, टाइगर है, चीता, फॉक्स, जेकॉल, डियर, ऑल दीज एनिमल्स दे लिव इन जंगल ओनली, इनके लिए कोई स्पेसिफिक हम अलग से कोई घर तो होता नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर, एंड कभी कभी वो वाटर से आकर के बाहर सैंड पे भी दे सिट, वो अपना धूप में बैठ लेटते हैं, ठीक है। सो दीज एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल होम। मंकीज हैं, वो ट्री पे इधर से उधर जंप करते रहते हैं, वो कहीं पे भी किसी भी बिल्डिंग के ऊपर कहीं पे भी वो सो जाते हैं, तो उनको भी कोई घर की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे ऑल्सो डू नॉट नीड एनी होम टू लिव, वो पेड़ की ब्रांच पे भी सो जाते हैं। बर्ड्स, ऑफ कोर्स बर्ड्स मेक नेस्ट जब उनको एग्स देना होता है, अदरवाइज बर्ड्स भी जो है वो अपना ट्री की ब्रांच पे रहती है, जब उनको एग्स देना होता है देन दे मेक
home. तब वो अपना नेस्ट बनाते हैं जहां पे कि वो एक सपने दे सकें. Rabbit of course makes its burrow. Rabbit जो है वो जमीन खोद के अपना burrow बनाता है. Ants जो होते हैं वो ants भी अपना घर बनाते हैं. Ant hill जो होता है. स्नेक्स किसी भी जमीन में छेद में रह जाते हैं, पेड़ में होल में, किसी भी पेड़ के होल में रह जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव इन द नेचुरल होम. सम एनिमल्स मेक देयर होम फॉर देमसेल्फ, लाइक बी ऑल्सो. स्पाइडर है अपना वेब बनाता है, बी जो है वो अपना हाइव बनाती है. एंड द पेट एनिमल्स जिनको हम अपने घर में एज पेट्स रखते हैं, वी मेक होम फॉर देम. ओके चिल्ड्रन, so today I will stop here only. In my next class we will do the exercises and question answers of this lesson. Okay children, that is all for today. Thank you for joining my class. Thank you so much.